4 topics we will cover today. ठीक है? Let us start with the first topic. पीने के पानी हमारे शरीर में किस तरीके से मदद करते हैं? First and foremost is metabolism. मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बताने के लिए मुझे कोई जरूरत नहीं, यू नो हाउ मेटाबॉलिज्म वर्क्स. मैं सिर्फ एक पॉइंट आपको बताऊंगा इन मेटाबॉलिज्म कि क्या होता है कि once the food is absorbed by our body, the glucose is separated, the waste is left out, or large intestine, if the body is not hydrated properly at that point of time, मतलब उस समय की बात कर रहा हूँ, when the glucose is taken out, the food waste is sent to the bowel. ठीक है ना? तो उस समय अगर body is not properly hydrated, if the body doesn't have water, sufficient water content, फिर large intestine जो है वो food waste में से पानी खींच लेता है. So if it is drawing water from the food waste, तो फिर आपका जो stool है that becomes hard, तो उसमें फिर constipation होता है. So this is the primary reason of constipation. Water plays a very crucial role in the last part of the digestive cycle, जहाँ पे वो मतलब if the body is hydrated तो ये वाला problem आपका होगा नहीं. So this is the most important benefit of drinking water, right? एक और major benefit है apart from the many other benefits that it plays is skin, human skin. Human skin is also an organ. Like all other organs, human skin is also an organ जिसमें बहुत सारे cells हैं. तो cell का hydration जरूरी है. If the cells are properly hydrated, then this elasticity can be maintained. Elasticity means that अगर आप फैलाएंगे तो वापस आ जाना चाहिए. The texture can be maintained and the moisture कैसे पता लगेगा कि उसमें moisture है कि आप नाखून से आप दाग दें तो उसमें कुछ निशान नहीं आनी चाहिए. So these are the 3 benefits that can happen with water purifier in terms of the skin. So ये 2 major benefit है, बाकी तो और भी benefits है. It prevents cramps, it reduces bad breath. So these are the 2 major benefits that you get from water, drinking water, the water that we get. Now I am coming to a point that there is a term called bioavailability. Bioavailability आप जानते होंगे? कितने जानते हैं? कितने लोग? Okay, you are doctor? Pharmacist, okay. तो bioavailability एक बहुत important term है when it comes to medicine and water. अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो please stop me. नहीं, if you want to add something, please do it. ठीक है? तो water का bioavailability is very important. Bioavailability क्या होता है कि when we drink water, the water needs to be absorbed by the systemic circulation. मतलब हमारे हर एक body के parts में water का proper distribution होना चाहिए and the body parts should accept the water that we are drinking, right? This is meant by bioavailability. अब medicine भी आपने देखा होगा डॉक्टर के पास जब जाते हैं, so डॉक्टर आपको एक medicine देता है. Suppose that medicine doesn't work with you, then the doctor changes the medicine. So bioavailability is also related to medicine. Medicine कौन सा medicine आपके body में accept करेगा, आपके intravenous systemic circulation में जाएगा, that also plays a very important role, like drinking water. So what the primary objective that we have today, that पानी तो हर जगह होता है. कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था जिसमें ये दिखा रहे थे कि जो bottled water होता है, that bottled water doesn't have any characteristics of drinking water. उसमें कुछ बचा ही नहीं होता पानी के जो, so that these waters are not bioavailable. So जो sharp vestige water purifier होगा, our objective is to make it more bioavailable. It means that the water that we provide, it will be able to enter the systemic circulation very easily. So that doesn't mean that it has to be clean, not only clean, but it should maintain the characteristics of water. Right? Have I been able to explain you? Yes. Characteristics of water तभी रह सकता है when the water properties are retained. Right? ठीक है? Have I said it correctly? Is it okay? Yes. Right. Thank you. So through the first benefit that we are giving on the water purifier is that it is more bioavailable. That I will prove. मतलब ये तो मैं अभी बता रहा हूँ. Through the presentation I will prove that why and how is our
water purifier more, water from our water purifier more bioavailable. थर्ड पॉइंट, अब फर्स्ट टॉपिक कवर हो गया, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक पे, किस तरीके के इम्प्यूरिटीज होते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, दो चीजें हो सकती है, या तो सब समझ में आ गया या तो कुछ नहीं समझ में आया। हाँ? दोनों का सॉल्यूशन बताओ। नहीं समझ में आया ऐसा समझ के समझा दीजिए। मैं तो मुझे कंफ्यूज कर दिया आपने। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि पानी में किस किस तरीके के इम्प्यूरिटीज होते हैं। अगर आप बॉम्बे म्यूनिसिपैलिटी की बात करेंगे कि बॉम्बे म्यूनिसिपैलिटी की पानी तो नलके से पी सकते हैं, मुझे कहा गया है, राइट, है ना? तो वहां पे तो आरओ फिल्टर लगाना मतलब क्राइम केस हो जाएगा, मतलब एफआईआर दर्ज हो सकता है आपके नाम से, ठीक है? सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोस, बट जनरली आउटसाइड बॉम्बे विच इज नॉट अंडर म्यूनिसिपल लिमिट्स, जहाँ पे आपको उतनी क्लीन वाटर मिलता है। बाय द वे, उस क्लीन वाटर के लिए भी हमारे पास एक अलग सोल्यूशन है। We are introducing two products. So one is for a different purpose, the second is for a different purpose. तो मैं अभी जो प्रेजेंटेशन दूंगा it is related to the first part, second part का अलग से डिस्कस करेंगे। तो कॉमन इम्प्यूरिटीज देयर, तीन तरीके के इम्प्यूरिटीज जनरली पाए जाते हैं। वन इज फिजिकल इम्प्यूरिटी, बहुत सिंपल है, सेडिमेंट, मिट्टी, मेटल पीसेस, ये सब जो है मतलब फिजिकल इम्प्यूरिटीज में गिने जाते हैं। फिजिकल इम्प्यूरिटीज को साफ करना बहुत इजी है, मतलब आप पानी को एक जगह रख दीजिए, थोड़ी देर के बाद वो सेटल हो सकता है, राइट? या तो एक बेसिक फिल्ट्रेशन सिस्टम से आप फिजिकल इम्प्यूरिटीज को कुछ हद तक निकाल सकते हो। सो फिजिकल इम्प्यूरिटीज अनलेस अदरवाइज इट इज वेरी हाई, तो छोटे छोटे फिजिकल इम्प्यूरिटीज को निकालना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। दूसरा है केमिकल इम्प्यूरिटीज। केमिकल इम्प्यूरिटीज आर वेरी डेंजरस। केमिकल इम्प्यूरिटीज आते कहां से? थोड़ा सोचिए, थोड़ा बताइए। केमिकल इम्प्यूरिटीज के मेजर सोर्स जो है वो है इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री वेस्ट निकालते हैं वो या तो नदी में डाल देते हैं या तो फिर गड्ढा खोद के वाटर बेड के अंदर घुसा देते हैं। सो मेजर सोर्स ऑफ केमिकल टॉक्सिन्स आर इंडस्ट्रीज। दूसरा केमिकल के सोर्सेस है जो खेती बाड़ी होता है। खेती बाड़ी में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है, तो वो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जो मिट्टी में रहते हैं, तो बारिश के साथ, जब बारिश होती है तो वो बारिश के साथ वो मिट्टी के नीचे अंदर तक चली जाती है, वो जब पानी के जाके मिल जाता है। सो दीज आर द टू मेजर सोर्सेज ऑफ केमिकल इम्प्यूरिटीज पानी के अंदर। सबसे डेंजरस चीज ये है कि केमिकल इम्प्यूरिटीज जो है पानी की कैरेक्टरिस्टिक्स को बदल देते हैं। मतलब प्रॉब्लम केमिकल इम्प्यूरिटीज का होना नहीं है, लेकिन केमिकल इम्प्यूरिटीज इतने डेंजरस है, वो अलग अलग तरीके से रिएक्शन करते हैं जो हमें पता भी नहीं होता, किस चीज के प्रेजेंस में किस चीज तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा। पीपल हु आर फ्रॉम केमिस्ट्री बैकग्राउंड दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड के अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं। यू विल नेवर बी एबल टू प्रेडिक्ट कि केमिकल किस तरीके से पानी के अंदर रिएक्शन कर सकता है, वो किस तरीके से उसको पॉइजन कर सकता है। बट मोटा मोटा ये है कि पानी की कैरेक्टरिस्टिक्स को खराब कर देता है केमिकल इम्प्यूरिटीज, जैसे स्पेशली फर्टिलाइजर्स और डीडीटी, ठीक है ना? सो दीज आर केमिकल इम्प्यूरिटीज। थर्ड, बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज, जिसमें आपके प्रोटोजोआ हो गए, ई कोलाई हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए, तो दे कम अंडर बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज। बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज को निकालना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ज्यादातर बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज जो है पानी को उबालने से वो बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज खत्म हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पानी को उबालने के बाद जो डेड सेल्स है वो पानी के अंदर ही रह जाते हैं। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम विथ बॉइलिंग वाटर, ठीक है ना? सो मैं आपको समझा पाया तीन तरीके की इम्प्यूरिटीज, सिंपल है ना? राइट। सो लेट अस नाउ गो टू द थर्ड टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आप जो भी पूछना चाहे आप पूछिए, बिकॉज अब हम ये डिस्कस करेंगे कि कंपटीशन, तीन तरीके की इम्प्यूरिटीज है। कंपटीशन उन तीन तरीके के इम्प्यूरिटीज को किस तरीके से प्यूरिफाई करता है और उसमें क्या ड्रॉबैक्स है, ठीक है ना?
राइट? तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज पे अटेंशन। अगर कोई क्वेश्चन है तो उसी वक्त पूछ लीजिएगा। सो पहला पॉइंट ये है कि बहुत सारे आजकल मार्केट में प्रोडक्ट्स है जो ये बोल के प्रमोट करते हैं कि मेरे पास 7 स्टेजेस फिल्ट्रेशन है, 8 स्टेजेस फिल्ट्रेशन है, ठीक है ना? तो मल्टीपल स्टेज फिल्ट्रेशन है तो और ज्यादा बेनिफिशियल होगा, इस तरीके से प्रमोट करते हैं। लेकिन वो एक्चुअली में क्या होता है कि अगर आप उसको डब्बे को देखेंगे, आप उसके फिल्टर के साइजेस को देखेंगे, तो वो छोटे छोटे फिल्टर्स देके वो फिल्टर के स्टेजेस बढ़ा देते हैं। मतलब इट इज लाइक अ मार्केटिंग गिमिक कि आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन देने के लिए, चलो मेरे घर में जो फिल्टर है वो 7-8 स्टेजेस के फिल्टर है, कुछ ना कुछ तो काम कर रहा होगा। दूसरा रीजन ये है कि जितने नंबर ऑफ फिल्टर्स वो बढ़ाएंगे उतनी उनकी सर्विस रेवेन्यू बढ़ती है। क्योंकि अगर आपके 4 फिल्टर है तो 4 फिल्टर से सर्विस रेवेन्यू आपको 1000 रुपए 2000 रुपए हो सकता है, लेकिन अगर आपने 7 फिल्टर लगा दिए तो वो डबल हो सकता है। सो सर्विस रेवेन्यू बढ़ सकता है। आपके मार्केटिंग गिमिक भी है कि हाँ मेरे पास इतने सारे फिल्टर्स हैं, बट काम क्या करता है नोबडी नोस। और हमने कभी जानने की भी कोशिश नहीं करी कि वो हर एक छोटे छोटे जो फिल्टर्स है वो किस तरीके से काम करता है, क्या यूटिलिटी है उसके पानी को प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में। ठीक है, हैव आई बीन एबल टू एक्सप्लेन? So don't go by the number of filters. आपको ये पूछना चाहिए कि हाँ impurities कौन सी ये करता है, कौन सी ये करता है, ठीक है ना? Right? हो गए? Second वाला बहुत important है. Now lot of people are promoting alkaline, the concept of alkaline. अब आप लोगों को body language change हो, alkaline बोल के बहुत सारे लोग, बहुत सारे marketing propaganda हो रहा है alkaline के लिए, हो रहा है कि नहीं? हाँ हो रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या है कि मोस्ट ऑफ अस डोंट अंडरस्टैंड कि वो किस तरीके से, हम लोग बोल रहे हैं अल्कलाइन है तो ठीक है अल्कलाइन अच्छा ही होगा। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अल्कलाइन होता क्या है एंड वो एक्चुअली हमारे बॉडी में किस तरीके से काम करते हैं, और क्या क्या तरीका है। इफ नॉट अल्कलाइन वाटर, व्हाट आर द अदर प्रोसेसेस, ठीक है, राइट? सबसे पहली बात तो द बॉडी पीएच। आवर बॉडी पीएच इज 7.3 to 7.4. यू आर अवेयर अबाउट दिस, राइट? ठीक है ना? वेस्टिज वेलनेस सिम्पोजियम, ठीक है? सो 7.3 and 7.4, ठीक है? दिस इज आवर बॉडीज पीएच। 7 इज न्यूट्रल, तो आवर बॉडी इज स्लाइटली अल्कलाइन, राइट? अब क्या है कि दूसरा पॉइंट ये है कि आजकल जो हमारे फूड हैबिट्स है वो थोड़े से एसिडिक हो गए हैं, am I right? जिस तरीके से खाना हम खाते हैं, मतलब वी हैव, मतलब पिज्जा हो गया, भजी हो गया है, तो मतलब जो फ्राइड आइटम्स है, जो बर्गर है, पिज्जा है, तो दे आर स्लाइटली एसिडिक, और उस तरीके के खाने का कंजम्पशन जो है हमारे में बढ़ गए हैं। कोल्ड ड्रिंक्स है, ठीक है ना, लिकर है, ठीक है, सो ये सब बढ़ गए। सो ऑब्वियसली क्या हो रहा है कि ये 2 पॉइंट कॉम्पिटिटर्स आपको बताते हैं। इन 2 पॉइंट्स में कोई डाउट नहीं, ये एक्चुअली ट्रूथ है कि आवर बॉडी इज अल्कलाइन एंड आवर फूड हैबिट्स हैव बिकम एसिडिक। यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं है कंपटीशन के साथ, कोई फाइट नहीं है कंपटीशन के साथ, ठीक है? अब बाकी जो 2 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा वो हाइट करते हैं। अब ये दोनों चीजें बोल के आपको अल्कलाइन वाटर देते हैं कि ठीक है आपका बॉडी एसिडिक हो रहा है तो आप पानी अल्कलाइन पियो तो इट विल मेंटेन द बैलेंस। दिस इज द मार्केटिंग प्रोपेगेंडा दैट दे डू, ठीक है? अब जो 2 बाकी पॉइंट है जो वो छुपाते हैं, वो 2 पॉइंट मैं आपको बताऊं, राइट? सो बॉडी इज अल्कलाइन, नाउ विद कंजम्पशन ऑफ फूड द बॉडी इज स्लाइटली बिकमिंग एसिडिक। ये तो ठीक है, अब उसका बैलेंस करना जरूरी है। सो इज इट नेसेसरी दैट पानी से ही वो बैलेंस करना है? जरूरी नहीं है ना कि पानी पी के आपको वो एसिडिक और अल्कलाइन का बैलेंस बनाना है। देयर आर अदर थिंग, अदर मीन्स आल्सो जिससे कि आप बॉडी की पीएच लेवल मैनेज कर सकते हैं। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। सो लेट अस एक्सेप्ट दैट वाटर इज नॉट द ओनली वे दैट वी कैन मैनेज द पीएच इन आवर बॉडी, राइट? चौथा पॉइंट ये है कि देयर आर रेगुलर आइटम्स दैट वी ईट एंड ड्रिंक, लेकिन हम इग्नोरेंट है कि वो कंज्यूम तो करते हैं लेकिन ये सोच के नहीं करते कि हाँ ये भी तो
अल्कलिनिटी मैनेज करने में हमारे शरीर में मदद करता है। लेट मी टेक 4 सच एग्जांपल्स। वैसे तो 40 एग्जांपल्स है, 4 वेरी कॉमन एग्जांपल्स जो आपके डाइट में है। आपके डाइट में दही डालते हैं ना, दही को जब डालते हैं तो दही का निकालते हैं तो उसमें पानी रह जाता है, राइट? दैट वाटर इज कॉल्ड वेई, WHEY। दैट helps in managing the pH level in our body. Very simple, right? Second point, आजकल बहुत सारे लोग जो वेजिटेरियन थे, they have become one step ahead, they have become vegan, right? So now when they have become vegan, वो dairy milk जो है avoid करते हैं, पनीर products, milk products avoid करते हैं. Now they have started taking almond milk. अब रात को सोक कर लीजिए, सुबह छिलके निकाल के उसको मिक्सर में चला दीजिए, almond milk. So almond milk also plays a very crucial role in managing the pH level. ठीक है? तीसरा पॉइंट यह है कि लेमन when it is outside, lemon juice when it is outside, it is acidic, but when it enters our metabolic process, it plays a very important role in managing the pH level. मेरे ख्याल से इन तीनों में से सबसे important रोल प्ले करता है लेमन। चौथा है कोकोनट वाटर। So coconut water intake, one coconut water intake a day can also help managing the pH level. So let me summarize these 4 points. Body is alkaline, उसमें कोई चैलेंज नहीं है। एसिडिक खाना खा रहे हैं, उसमें भी कोई चैलेंज नहीं है। बाकी जो 2 पॉइंट है वो हाइड क्यों कर रहे हैं, वो छुपा क्यों रहे हैं? वो छुपा इसलिए रहे, नहीं तो उसका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। So water is not the only source that can help you manage the pH level. Third point. Fourth point is आपके डाइट में है। So if you are able to have natural things and manage the pH level, तो आप artificial alkaline करके क्यों लेना चाहिए? Artificial इसलिए कह रहा हूँ कि जो अगर न्यूट्रल वाटर को alkaline कर रहे हैं, न्यूट्रल वाटर को जब alkaline करते हैं, they are using some kind of electrolysis process, some kind of process which involves chemical reaction, right? We can discuss that chemical reaction after this after this presentation. तो लेकिन commonly आप इतना जान लीजिए कि अगर न्यूट्रल वाटर को अगर alkaline करना है या acidic करना है, you have to use certain chemicals to enhance that process. तो obviously अब choice आपके हाथ में है. You have to manage the pH level. Will you opt for chemical based alkaline water or natural items which can manage the pH level in your body? The choice is between these two. Very simple. ठीक है, मैं आपको समझा पाया? Clear everybody? No questions? No questions? Yeah, जी. I am not aware. अगर वो मैंने डेमो में देखा है, बट या बिस्लरी की बॉटल्स आती हैं, जो बाहर की बिस्लरी की बॉटल्स हैं, वो 9 के ऊपर चली जाती है, तो वो भी पीना हमें कम करना है। तो यानी वो बहुत, तो वहाँ पे तो ये रोल नहीं करता ये वाटर प्यूरिफायर, दैट अल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर। बाहर जाके हम बिस्लरी की बॉटल पियेंगे तो वो तो पीते ही हैं, तो उसमें 9 के अबाउट चला जाता है। सॉरी, दैट इज वेरी बैड। वो 3-4 के आसपास उसका पीएच होता है। देन कोको कोला या जो भी ये सब है उसमें और 3, 4, 5 के बीच में ये रहता है। So, ये मैंने वो डेमो देखा है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ट्रू है ना? हाँ, नहीं, बिस्लरी बॉटल आरओ बॉटल के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, वो बाहर रहता है ना। वो एक मिनट, जब आप जो वाटर है, आप समझो घर के मटके का वाटर का मैंने पीएच टेस्ट किया है, ट्राई किया है, वो
6.5 से 7 के बीच में आता है, यानी जो हमारे लिए नॉट बैड फॉर अस, ठीक है। पर अगर आप पेप्सी, कोको कोला, देन बिस्लरी वाटर, दैट इज वेरी, उसका पीएच बैलेंस बहुत डाउन होता है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं ना, पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं ना उसके अंदर। सो वो ये मैंने एक्चुअल देखा हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। एक्चुअली पेस्टिसाइड्स का क्या है कि जहाँ पे कोका कोला की फैक्ट्री होती है, कोका कोला की वो पानी निकालते हैं, बोर करके मिट्टी से पानी निकालते हैं। आई डोंट थिंक दे डू एनी प्यूरिफिकेशन, उसी पानी को मिला देते हैं कोका में। So that is why the pesticides come into it. This is my thought. I don't really know. उसकी डिटेल मुझे भी नहीं मालूम है, पर इतना पक्का मालूम है उसका पीएच बैलेंस बहुत डाउन होता है। तो वो ये सब चीजें हम देन अल्कोहल तो है ही, तो ये सब चीजें जो जितना दैट इज वेरी डेंजरस। I think our concept, sharp wastage concept, is that हम आपको pure natural water दे रहे हैं. The pH that we are giving is 7. एक पॉइंट और मैं भूल गया था, आई मिस्ड आउट व्हाइल वी वर डिस्कसिंग दी सीएनटी। जिस तरीके की पोल्यूटेंट आज पानी में है, आरओ के अलावा और कोई तरीका नहीं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बॉम्बे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिल्ली। दिल्ली, बॉम्बे आर प्रोबेबली ओनली दी 2 सिटीज जहां पे आपको पूरे तरीके से ऐसा पानी मिलता है जो आप नलके से निकाल के पी सकते हो। द ओनली प्रॉब्लम दैट कम्स इज कुछ समय जब वो पाइप के थ्रू आता है तो थोड़ा थोड़ा स्मेल या थोड़ा थोड़ा कार्बन आ जाता है उसमें, तो उसमें बेसिक प्यूरिफिकेशन से वो काम चलता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीज 2 एरियाज, बट एज पर स्टैटिस्टिक्स वी हैव परचेज्ड अ वेरी एक्सपेंसिव रिपोर्ट फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड सलिवन। अकॉर्डिंग टू दैट 70% ऑफ इंडिया जो पानी हम रॉ वाटर लेते हैं दैट इज नॉट ड्रिंकेबल, मतलब उसको किसी न किसी तरीके का आरओ प्यूरिफिकेशन चाहिए। अब सवाल यह है कि आरओ प्यूरिफिकेशन होने के बाद दैट उसके अंदर कोई मिनरल्स या विटामिन्स या कुछ नहीं रहता। लेट अस एक्सेप्ट कि आरओ के अंदर कुछ नहीं रहता और आरओ प्यूरिफिकेशन नेसेसरी है। आप बॉम्बे के बाहर अगर जाएंगे, अगर 100 किलोमीटर भी दूर जाएंगे, आपको पानी वहां पे पीने लायक नहीं मिलेगा एंड यू हैव टू यूज आरओ प्यूरिफायर। अगर आपने आरओ का इस्तेमाल कर लिया तो यू हैव टू एक्सेप्ट कि मिनरल्स उसमें से गए। बट दिस इज वेयर, लेट मी कम, दिस इज वेयर वेस्टेज प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल। चूंकि आपका जो पोजीशनिंग है, यू आर नॉट गोइंग टू अ प्रॉस्पेक्ट टू सेल वाटर प्यूरिफायर्स। प्लीज आप ये चीज याद रखिए, प्लीज आप ये चीज याद रखिए कि यू आर नॉट गोइंग टू अ प्रॉस्पेक्ट टू सेल एयर प्यूरिफायर और वाटर प्यूरिफायर। यू आर मीटिंग अ प्रॉस्पेक्ट एज अ कंसल्टेंट to improve the quality of health and the quality of life. So we all accept that RO से minerals तो नहीं रहते, लेकिन with the natural supplements that you are providing, you can compensate those minerals deficiency. मैं आपको समझा पाया? So we have to go with this story. Dipal madam, you have to communicate this. ठीक है ना? So you have to go with this story. आप ये accept कर लीजिए कि minerals आपको पानी से नहीं आ सकते। While most other brands are trying, because उनके पास तो मिनरल की सप्लीमेंट्स नहीं अवेलेबल है ना। अब तो यूरेका फॉक्स और केंट तो मिनरल सप्लीमेंट्स लॉन्च नहीं कर सकता। सो दिस इज वेयर यू हैव अ अपर हैंड vis-a-vis कंपटीशन। आप जब जा रहे हो, आप वाटर प्यूरिफायर नहीं बेच रहे हो, यू आर इंप्रूविंग द हेल्थ एंड वेलनेस ऑफ दैट पर्सन। प्लीज रिमेंबर दैट, प्लीज रिमेंबर दैट ऑलवेज, एंड प्लीज टेल योर डाउनलाइन दैट आल्सो। ठीक है? एम आई राइट? So this is clear. अब तीसरा पॉइंट है, मार्केट में बहुत सारे सस्ते प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आप अपने घर के आसपास जाएंगे, आपको आसपास में ही 10-12 लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे आप ब्रांडेड वाला क्यों ले रहे हो, आप मेरे को 8,000-10,000 रुपए दे दो, मैं आपको उससे बेहतर प्यूरिफायर तैयार करके दे दूंगा। ठीक है ना? अब जो आदमी 8,000 में आपको प्यूरिफायर दे रहा है, वो 8,000 का ही सामान उसमें डाल के देगा ना। सस्ती चीजों में क्वालिटी नहीं होती और क्वालिटी सस्ती नहीं होती। Am I right? Yes. ठीक है ना? So please remember this very clearly. मतलब पैसा जितना दोगे उतने ही आपको उतने का ही माल मिलेगा। अगर आप अलमारी बनाने जाते हैं, अलमारी वाले फर्नीचर वाले को बोलते हैं मेरे को अलमारी बना के दो, वो बोलता है 20,000 के बनाऊंगा,
बोले नहीं नहीं आप 10,000 के बनाओ, तो वो 10,000 की मटेरियल डाल के आपको बना के देगा, वो कोई 20,000 वाला सामान आपको 10,000 में नहीं देगा। Am I right? So cheap product, don't go for cheap products, go for products which has value for money. So let us try to see how we can offer value for money. तीसरा चौथा TDS कंट्रोलर को मैं थोड़ा शिफ्ट करता हूँ। दिस इज द प्राइम बेनिफिट दैट वी आर ऑफरिंग। इसको मैं थोड़ा सेपरेट करता हूँ, इसको मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में। There are many brands who do एडवर्टाइजिंग विद हाई डेसिबल, मतलब पेपर में देखो एडवर्टाइजिंग, टीवी में एडवर्टाइजिंग, सिनेमा हॉल में जाओ तो वहां पे एडवर्टाइजिंग, सेलिब्रिटीज को लेके एडवर्टाइजिंग। तो ये सब के पैसे कौन देता है? हाँ, हम ही देने ना। तो ऑब्वियसली अगर सेलिंग पॉइंट यहाँ पे है, सेलिंग प्राइस यहाँ पे है, वो तो खर्चे में आ जाता है ना। तो ऑब्वियसली दे विल आल्सो कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी, मतलब उनको तो प्रॉफिट दिखाना है। अब मार्केट हैज बिकम प्राइस कॉन्शियस नहीं है, मार्केट हैज बिकम प्राइस कॉन्शियस बिकॉज लोग उस तरीके से सोचते हैं। 16,000 में प्रोडक्ट, फिर माइनस करिए सेलिब्रिटी कॉस्ट, फिर माइनस करिए कंपनी प्रॉफिट, मटेरियल खर्चा कितना आएगा, ठीक है ना। सो ऑब्वियसली दे विल कॉम्प्रोमाइज ऑन द प्लास्टिक, फिल्टर्स, किसी ना किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज वो करेंगे। एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है, आई विल नॉट नेम इट, वो एक 3,000 रुपए के प्रोडक्ट बेचते हैं, पावरलेस, गांव में बहुत बिकता है। पिछले 2 साल में दे हैव ऑलमोस्ट कवर्ड ऑल ऑफ इंडिया, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। वो एक केमिकल कार्ट्रिज का इस्तेमाल करते हैं, वो केमिकल का नाम नहीं पता, लेकिन उसके अंदर क्लोरीन। अब आप सोचिए, क्लोरीन के पानी में आप दंत मंजन भी करते हैं तो दांत पीले हो जाते हैं, एंड यू आर ड्रिंकिंग दैट वाटर। इतनी बड़ी कंपनी है, वो इस तरीके से कर रहा है, आप सोचो, ठीक है ना। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर एक एयर प्योरीफायर में एक यूवी चेंबर होता है, ठीक है ना। यूवी का मैं कुछ आपको ब्रीफ बताता हूँ कि यूवी काम कैसे करता है और उसके ड्रॉबैक्स क्या है। वेरी सिंपल, एक पाइप जैसा होता है यूवी चेंबर, राइट, उसके अंदर एक यूवी लाइट होती है। यूवी लाइट जब जलता है, इट इल्यूमिनेट्स इन अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। जब जलता है उसके अंदर ओजोन के साथ कांटेक्ट में आके वो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आके वो ओजोन प्रोड्यूस करता है। सो व्हेन द वाटर passes through that pipe, that ozone which is produced helps in disinfecting some bacteria. This is the process. समझा पाया? Yes. राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि यूवी चेंबर अगर आप सस्ते प्रोडक्ट देंगे तो यूवी लाइट भी सस्ता हो जाएगा। जब यूवी लाइट सस्ता हो जाएगा तो यूवी लाइट की इंटेंसिटी ऑन डे 1 एंड डे 100 विल इट बी सेम? No. दूसरी बात, यूवी लाइट के अंदर काई जम जाता है, मतलब पानी जब कंटिन्यूअसली जाता है तो उसके अंदर काई जम जाता है। आप लोगों के पास यूवी वाला प्यूरिफायर है? किसी के पास है? इंजीनियर कभी भी यूवी के चेंबर को खोल के साफ करता है? नहीं। लाइट बदलता है कितने साल में? जब वो जल जाता है, अदरवाइज नहीं करता ना। तो ऑब्वियसली वो जो इंटेंसिटी है, तो इंटेंसिटी कम होगी तो उसकी बैक्टीरियल प्यूरिफिकेशन की भी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो यूवी चेंबर का प्रॉब्लम ये है कि एक तो साफ नहीं होता और वो लाइट की इंटेंसिटी कंसिस्टेंट नहीं होती। तो कंसिस्टेंट नहीं होगी तो उसकी एबिलिटी टू डिसइंफेक्ट आल्सो विल गेट रिड्यूस्ड, ठीक है। So these are the various technologies that are currently being used. मैं आपको बता पाया, समझा पाया, right? So जी, you had a question also. Previous slide. हाँ. हाँ, मैं आऊँगा उस पे। सस्ते प्रोडक्ट से हम कहाँ, सस्ते प्रोडक्ट कहाँ कॉम्प्रोमाइज करते हैं? आई विल कंप्लीट। आपके कुछ क्वेश्चन? यू हैव कवर्ड इट, ठीक है। सो नाउ वी हैव कवर्ड 3 टॉपिक्स। एक, हमने जाना कि वाटर के बेनिफिट्स क्या है। दूसरा, हमने जाना कि किस किस तरीके की इम्प्यूरिटीज होती है। फिर तीसरा, हमने जाना कि कंपटीशन किस तरीके से उसको मैनेज करता है और उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं।
जो मैंने ड्रॉबैक्स बताया मैं आपको क्लियरली बता पाया, दे आर ट्रू, राइट? नाउ लेट अस इंट्रोड्यूस द वेस्टीज वाटर प्यूरिफायर। ओके, तो हम लोग जो है, हम लोग इसमें 4 फिल्ट्रेशन सिस्टम्स दे रहे हैं। नोट मत करिए, दिस प्रेजेंटेशन विल बी अवेलेबल टू यू, बस आप सुन लीजिए। वंस यू लिसन टू मी केयरफुली यू विल बी एबल टू रिलेट इट विद द प्रेजेंटेशन स्लाइड। 4 फिल्ट्रेशन सिस्टम्स दे रहे हैं। एक है आपका पॉलीप्रोपिलीन फिल्टर, पीपी फिल्टर, सेडिमेंट फिल्टर जिसे बोलते हैं, जो आपके फिजिकल इंप्योरिटीज को कम करता है। पीपी फिल्टर के बहुत खास रोल है। पीपी फिल्टर प्रोबेबली plays a very important role in the entire purification process. गणेश आके एक बार खोल देना तो फ्रंट कवर। पीपी फिल्टर plays a very important role। क्यों? Because जब आपके पानी फिल्ट्रेशन सिस्टम के अंदर आते हैं वो बहुत सारी इम्प्योरिटीज को लेके आते हैं, ठीक? जब वो बहुत सारे इम्प्योरिटीज को लेके आते हैं, अगर आपका सिक्योरिटी गार्ड कमजोर होगा तो वो इम्प्योरिटीज अंदर चली जाएगी। सो पीपी फिल्टर अगर खराब क्वालिटी का हुआ तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज उसके अंदर से आगे फिल्ट्रेशन सिस्टम की तरफ चले जाएंगे, जो उसकी लाइफ कम हो जाती है और उसकी एफिशिएंसी भी उस तरीके से नहीं होती। तो हमने क्या किया, पीपी फिल्टर की क्वालिटी बहुत उम्दे क्वालिटी का दिया है, बहुत सुपर हाई ग्रेड क्वालिटी का दिया। पीपी फिल्टर बहुत सिंपल होता है, एक कपड़े को जैसे आप रोल करते हो ना, उस तरीके का पीपी फिल्टर होता है। टू अंडरस्टैंड सिंपली, एक तो हमारे पीपी फिल्टर की लेंथ, मछली का जाल जितना बड़ा है उतनी मछली पकड़ने में आएगा, उस तरीके से द लेंथ ऑफ द पीपी फिल्टर इज हायर देन व्हाट इज अवेलेबल इन द मार्केट। तो पीपी फिल्टर प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, जितने भी इम्प्योरिटीज है उसको सही तरीके से उसको ट्रैप करने की कोशिश करता है। सो पीपी फिल्टर के 2 बेनिफिट्स है, एक उसकी साइज बड़ी है देन व्हाट इज अवेलेबल इन द मार्केट, दूसरा उसकी क्वालिटी अच्छी है, सो इट कैन फेस द बर्न ऑफ ऑल दी इम्प्योरिटीज, बिकॉज वो सबसे पहले तूफान की तरह वो सारी इम्प्योरिटीज को लेके ठोकता है, ठीक है ना? गॉट इट? कार्बन फिल्टर वेरी कॉमन, सब ब्रांड्स के पास होते हैं। पीपी फिल्टर, कार्बन फिल्टर, कुछ नाम देते हैं सेडिमेंट फिल्टर, एक्टिव कार्बन फिल्टर, बट ये दोनों चीजें हर ब्रांड के पास होती है। कार्बन फिल्टर इज लाइक ग्रैन्यूल्स, कार्बन फिल्टर के अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं। तो ग्रैन्यूल्स जितने ज्यादा होंगे उतनी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो हम लोगों ने क्या किया, वी हैव गिवन हायर वेट ऑफ ग्रैन्यूल्स, मतलब ग्रैन्यूल्स जो आपको मार्केट में मिलते हैं नॉर्मल फिल्टर में, वी हैव गिवन मोर ग्रैन्यूल्स। सो ऑब्वियसली सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया तो केमिकल के लिए एब्जॉर्प्शन, मतलब ये नहीं कहता मैं सारे केमिकल्स एक्टिव कार्बन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, बट मोस्ट ऑफ द केमिकल्स इट कैन एब्जॉर्ब। जो वाटर पैसेज में इट वी हैव इंक्रीज द सरफेस एरिया बाय इंक्रीजिंग द वेट ऑफ द ग्रैन्यूल्स एंड नंबर ऑफ ग्रैन्यूल्स, ठीक है? फिल्टर के लाइफ के बारे में मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। थर्ड, मार्केट में जो हमें आरओ मिलते हैं उनकी लाइफ कितनी होती है जनरली, एवरेज? 1 साल। हाँ, पानी के ऊपर डिपेंड है। जनरली मैक्सिमम कितना होता है? 1 साल 1.5 साल। हाँ? 1 साल 1.5 साल। आपने कौन सा देखा है 3 to 4 years? सूरज जी, हाँ? डिपेंड्स अपॉन द टीडीएस। जनरली 1 साल। टीडीएस के ऊपर डिपेंड ऑन टीडीएस ऑफ द वाटर, पानी का हमनेस के ऊपर। 1 साल, जनरली 1 साल, हर साल में आरओ बदलना पड़ता है। हमारे फिल्टर, हमारा जो आरओ फिल्टर है उसकी रेटेड लाइफ है 2 साल। 4000 लीटर। Why we are able to give a higher life, right? उसके भी 2 reasons हैं। एक, we have sourced the RO material from USA। ठीक है, by the way मैंने आपको बताया ना कि शार्क is not a specialized company for making water purifiers, but उन्होंने जब बनाया तो they have found out vendors who produces the best quality of materials, EP के लिए भी, CP के लिए भी, RO। So RO has been sourced from USA. The quality of the membrane is much better, and because उस RO फिल्टर से पहले के जो 2 फिल्टर्स है उसकी क्वालिटी अच्छी है,
तो आरओ की भी लाइफ बढ़ जाए, राइट, है ना, राइट। सो दीज आर द टू बेनिफिट्स। बाकी और मैं थोड़ी डिटेल में बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है ना। ये 3 फिल्टर, ठीक है। चौथे फिल्टर डिस्ट्रप्टर के बारे में अब मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। दिस इज वेयर आवर यूएसपी लाइज, ठीक है ना। अब अगले 10 मिनट प्लीज ध्यान से सुनिए। दिस इज वेयर वी आर डिफरेंट फ्रॉम द कंपटीशन, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ यू हैव एनी डाउट, क्योंकि ये चीज आप अगर समझ लिया आपने तो देन आपके काम हो गए। और इसको समझाने में 5-7 मिनट से ज्यादा नहीं लगता, बट आई विल स्टिल टेक अबाउट 10-15 मिनट्स सो दैट आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू बेटर, ठीक है ना। सबसे पहले अब देखिए ये जो है, मैं लेफ्ट हैंड साइड जो है, एवरीबॉडी कैन सी लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, दिस इज द कॉमन फिल्ट्रेशन सिस्टम। दीज आर द डिफरेंट लेयर्स। मैंने आपको शुरू में बताया था ना, मल्टीपल लेयर्स, ठीक है ना। दीज आर द मल्टीपल लेयर्स दैट यूज। दिस इज रॉ वाटर। पहला फिल्टर इज सेडिमेंट फिल्टर, जो व्हिच इज इक्विवेलेंट टू द पीपी फिल्टर, ठीक है ना। कार्बन फिल्टर, एक्टिव कार्बन, ये दोनों फिल्टर कॉमन होते हैं हर ब्रांड के लिए, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर के बाद जब पानी यहाँ आती है तो पानी को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, गेटिंग नहीं, राइट। आपको दिखाई दे रहा है? yes, पानी को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट जो है आरओ की तरफ जाता है, एक पार्ट जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं इसको। तो आरओ की तरफ जो जाता है ऑलमोस्ट 70% पानी आरओ की तरफ जाता है और 30% पानी इधर आता है। तो इसका जो सेलिंग पॉइंट वो बताते हैं, वो सेलिंग पॉइंट ये बताते हैं कि इसमें मिनरल्स हम दे रहे हैं आपको, लेकिन इसमें कितना सच है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब 70% जो पानी आरओ की तरफ से गया, ऑब्वियसली यहाँ पे 95% प्यूरिफिकेशन होगा और इसमें से मिनरल्स और सब बाकी चीजें सारे निकल गए। अब यहाँ वाला जो हिस्सा है 30% पानी जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के होते हुए आ रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की एफिशिएंसी 75 से 80% से होती है, उससे ज्यादा नहीं होती। 75% वाला पानी यहाँ पे आया और 95% वाला पानी यहाँ पे आया। अब बीच में आपको ये दिखाई दे रहा है टीडीएस कंट्रोलर। टीडीएस कंट्रोलर क्या करता है, वो एक मिक्सर ग्राइंडर की तरह है। तो 85%, 75 to 80% प्यूरिफाइड पानी और 95% प्यूरिफाइड पानी को मिक्स कर देता है, ठीक है। इसका सेलिंग पॉइंट क्या है? सेलिंग पॉइंट यह है कि मैं आपको मिनरल्स दे रहा हूं। इसमें से मिनरल्स निकल गए, इसमें से थोड़ा बहुत मिनरल्स है और इन दोनों को मिला दिया। अब आपके हिसाब से यहाँ पे आउटपुट जो निकलेगा वो कितनी % प्यूरिफिकेशन होना चाहिए? यहाँ पे 95, यहाँ पे 80 मान के चलिए। तो यहाँ पे हो सकता है आपको 90% के आसपास प्यूरिफिकेशन मिले, राइट। जो टीडीएस कंट्रोलर के आउटपुट है वहां पे 90% प्यूरिफिकेशन है, थोड़ा बहुत मिनरल्स है, लेकिन इम्प्यूरिटीज भी साथ में है, करेक्ट, राइट। यहाँ पे अगर कोई भी चीज मैं ना समझा पाऊं तो प्लीज स्टॉप मी। उसके बाद उन्होंने यूवी को दिया, यूवी लगाया। यूवी के ड्रॉबैक्स आपको मालूम है। उसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट कार्बन दिया। मालूम है कि यहाँ पे एक और चीज बहुत कॉमन है यूवी में, आई थिंक विच आई मिस्ड आउट। जब बैक्टीरिया को डिसइंफेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को जब डिस्टेबलाइज करते हैं, तो उसमें एक एंडोटॉक्सिन नाम की चीज रह जाती है। When the bacteria is destabilized, endotoxins remain in the water. तो वो पानी जो है आपका यहाँ पे जब यूवी से निकल रहा है, एंडोटॉक्सिन्स भी है साथ में, ठीक है। तो एंडोटॉक्सिन्स के साथ ये पोस्ट कार्बन के थ्रू गया। आपके हिसाब से यहाँ पे कितनी % प्यूरिफिकेशन मिलेगा? आपके हिसाब से 95 मान के चलते हैं, 90 मान के चलते हैं, ठीक है। तो वो 95 या 90% प्यूरिफिकेशन आपको, 90% मान के चलते हैं प्यूरिफिकेशन आपको यहाँ पे देता है, हमारे इसमें कोई डाउट नहीं है।
but the claims made by the company are different. आप एक बात सोचिए, I can see only serious faces. हाँ? क्या इतना मैंने कुछ सीरियस बताया? हाँ? आप बताइए, क्या मैं आपको समझा पाई है? This is very important. Everybody, you agree with me on those points? यहाँ पे जो प्यूरिफिकेशन आपको मिलेगा 90 to 95% मिलेगा। इसके बाद पानी कहाँ जाता है? टैंक में जाता है। इसके बाद टैंक में जाता है ना। जब टैंक में जाता है तो जो एंडोटॉक्सिन्स और जो बैक्टीरिया या जो ई कोलाई और जो इन्फेक्शंस जो रह गए, अगर आपने टैंक के अंदर 1-2 घंटा उसको स्टोर किया तो वो टैंक में मल्टीप्लाई करेगा। वेरी सिंपल। तो प्यूरिफायर का आउटपुट है 95%, टैंक के अंदर 2 घंटे रहा, वो 95% हट के वो 90% के आसपास हो गया। या हो सकता है टैंक के अंदर अगर 3-4 घंटे रहा पानी तो और ज्यादा इन्फेक्शन उसके अंदर पैदा हो गया। सो इज इट द क्लीनेस्ट वाटर? No. हाँ? No. So this is the water that we are drinking with the existing water purifiers in India. ये चाहे A to Z किसी भी कंपनी का ले लीजिए, आपको यही चीज मिलेगी। This is the concept. Yes, yes. Actually they claim that they are giving the purest water, but reality में क्या है आपके सामने है? This is our USP. This is the USP that we are going to do, और उसका मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा आपको। अब आप देखिए कि हमारा जो ब्लॉक डायग्राम, मैंने आपको थोड़ी देर पहले मिस किया था ब्लॉक डायग्राम। पहले आपका पीपी फिल्टर जो मैंने बताया था आपको, देन वी हैव द कार्बन फिल्टर, देन आरओ मेम्ब्रेन। बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि आरओ मेम्ब्रेन का जो आउटपुट है वो टैंक में जाता है। देखा आपने? जब आप वाटर टैप को खोलते हैं, ठीक है गणेश आ जाओ, जब आप वाटर टैप को खोलते हैं, पानी जब टैंक से निकल के आता है वाटर टैप तक, बीच में है एएफ डिसरप्टर। आपने सारे पोस्टर में देखा है ना, डिसरप्टर टेक्नोलॉजी, सारी जगह लिखा हुआ है डिसरप्टर टेक्नोलॉजी। हमारा प्रोसेस आप देखिए, जब मेम्ब्रेन से जाता है टैंक में, टैंक से जब पानी टैप तक पहुंचता है वो डिसरप्टर के थ्रू आता है। ये जो डिसरप्टर है हम लोगों के लिए बहुत इजी था कि आरओ को निकाल दो, डिसरप्टर लगा दो। बट अगर हम मार्केट में जाते ना कि हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें एक बहुत शानदार टेक्नोलॉजी है, डिसरप्टर जो आरओ से भी बेहतर काम करता है, एक भी प्रोडक्ट नहीं मिलता। ठीक है ना? आरओ इज नॉट अ टेक्नोलॉजी, आरओ हैज बिकम अ ब्लड ग्रुप। प्यूरिफायर विदाउट आरओ कोई सोच भी नहीं सकता। तो हमने क्या किया, आरओ को तो लगाया, बट वी हैव क्रिएटेड अ वेरी यूनिक प्रोपोजिशन, जिसमें पानी जब आपके टैप में आ रहा है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी के थ्रू आ रहा है जो कि सुपीरियर क्लीनिंग क्लेम कर सकता है। देखिए, दिस इज आवर फर्स्ट एडवांटेज, क्लीनेस्ट वाटर प्रॉमिस। क्यों दे रहे हैं हम क्लीनेस्ट वाटर? बिकॉज वो टैंक से जब पानी आता है वो डिसरप्टर के थ्रू आता है। मैं आपको समझा पाया? Yes. Is the left side diagram competition कैसे है, और हमारा वाला डायग्राम मैं आपको समझा पाया? क्लियर? लेकिन आपको अब डाउट हो रहा होगा कि मैंने तो बोल दिया डिसरप्टर, लेकिन इसकी गारंटी क्या है, प्रूफ क्या है? आपको डाउट हो रहा होगा ना कि मैंने तो बोल दिया, पीपीटी बना दिया, प्रूफ क्या है? जस्ट वेट, मैं आपको एक शानदार प्रूफ दिखाता हूँ। जस्ट वेट, इस फाइल को बंद करता हूँ, दूसरा फाइल खोलता हूँ। There is an organization called TUV. TUV जानते हैं आप? नाम सुना है? So TUV is an international organization जिसकी इंडिया में भी ऑफिस है। TUV का काम ये है कि जब भी अगर कोई प्रोडक्ट आप इंडिया में लेके आते हो, आपके ऊपर चॉइस है कि आप प्रोडक्ट लेके आए हो, आप ये क्लेम कर रहे हो कि मेरा प्रोडक्ट ये काम करता है। सो यू कैन गो टू TUV एंड से कि मेरा प्रोडक्ट हम लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये करता है, आप प्रूफ करके दो ताकि मैं कंज्यूमर को दिखा सकूं
कि हमारे प्रोडक्ट ये काम कर सकता है, ठीक है। सो हमने आपको बताया कि अराउंड अगस्त और सितंबर हमने फर्स्ट प्रोटोटाइप इंडिया में लेके आए थे, जो हमने दिखाया था। तो वो फर्स्ट प्रोटोटाइप जो है अराउंड सितंबर और अक्टूबर, राइट, इट इज सितंबर हमने टीयूबी को सबमिट किया कि हम ये चीज क्लेम कर रहे हैं, आर्सेनिक का इतना परसेंट क्लेम था। आपने दिखाया था ना मैंने आपको कि इतने परसेंट क्लेम कर रहे हैं। तो आप एक बार चेक करके बताओ कि एक्चुअली इंडियन कंडीशंस में ये प्रूफ हो सकते हैं कि नहीं, या इसकी कम है या ज्यादा है, ठीक है। सो टीयूबी ने हर एक पोल्यूटेंट को चेक किया, हर एक पोल्यूटेंट को चेक किया। अब देखिए यहाँ पे, आप देखिए टीडीएस आपको पता है क्या होता है? टीडीएस क्या होता है? टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स, मतलब पानी का मेजरमेंट ही टीडीएस से लिया जाता है। तो उन्होंने क्या किया, टेस्ट करने के दौरान उन्होंने 1547 टीडीएस स्पाइक किया पानी के अंदर, टेस्ट किया, और आउटपुट वाटर में उनको 133 मिला। सो दिस इज एज पर स्टैंडर्ड्स व्हिच आर मेंशन्ड हियर। तो पहला वाला जो है इनलेट वाटर, ये टेस्ट रिजल्ट्स है इनलेट वाटर और आउटलेट वाटर, ठीक है। और ये है परमिसिबल लिमिट, और ये है आईएस स्टैंडर्ड्स, इंडियन स्टैंडर्ड्स या ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, जिसके हिसाब से ये टेस्ट किया गया। मोर इम्पोर्टेंटली पॉइंट ये है कि इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री। इंडिया में हर एक जगह अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, कोई ऐसा कोई कॉमन प्रॉब्लम नहीं है कि यूनिवर्सल प्रॉब्लम। हर 50 किलोमीटर में आपको प्रॉब्लम डिफरेंट मिलेंगे पानी के, हवा के भी। सो टीयूबी जब चेक करता है, उन्होंने इंडिया के जो कॉमन पोल्यूटेंट्स है, जो पूरे इंडिया में हर एक कोने में, गांव में जो पोल्यूटेंट्स मिलता है, उनके जो टेस्ट रिजल्ट्स है, इट इज डिपेंडेंट ऑन ऑल द पोल्यूटेंट्स दैट आर फाउंड इन इंडियन वाटर, ठीक है। और वो जो स्पाइक करते हैं, वो स्पाइक इस तरीके से करते हैं जो अभी सर्टेन रेशियो है उससे भी ज्यादा पोल्यूटेंट स्पाइक करते हैं, सो दैट दे कैन चेक दी परफॉर्मेंस, ठीक है ना। तो अब मैं आपको दिखाता हूं, जैसे दिस इज, ये तो कॉमन हो गया टीडीएस। अब जो है मैंने आपको केमिकल इंप्योरिटीज के बारे में बताया था, फिजिकल के बारे में बताया था, और बायोलॉजिकल के बारे में बताया था। अब आप देखिए कि टीयूबी के रिजल्ट्स केमिकल इंप्योरिटीज और बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज को किस तरीके से हम ये लोग दिखाते हैं। आप ये देखिए, आई विल नॉट मेंशन अबाउट ऑल ऑफ देम बिकॉज बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा। आर्सेनिक का नाम आपने सुना है? आर्सेनिक का नाम सुना है? आर्सेनिक उन्होंने स्पाइक किया, ये है परमिसिबल लिमिट, ठीक है, ये परमिसिबल लिमिट। और हमारा जो मेजरमेंट उनको मिला, मेजरमेंट जो मिला, येलो क्यूब क्या होता है? इट इज कैन यू जॉइन? आई विल आस्क, रिक्वेस्ट एडी सिंह टू जॉइन। ही इज आवर नेशनल सर्विस हेड ऑल इंडिया, so he played a important role. It is because of him that we have got this report. So आप थोड़ा सा, so good morning leaders. Good morning. So in fact, just to mention, this report, date of this report coincides with the pre-launch of the product in Delhi. So 9th April को ये product pre-launch हुआ था, उसी दिन हमें ये report मिली थी। Unfortunately जिस दिन ये launch हुआ उस दिन हम ये report Delhi में भी दिखाया था, लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं। So arsenic, as he mentioned, arsenic आप सब जानते हैं बहुत ही poisonous chemical है। तो ये water में रहेगा तो body में health में बहुत सारी problems create कर सकता है। So इसमें इन्होंने जो 0.101 से इसको स्पाइक किया, और इसकी जो परमिसिबल लिमिट है एज पर IS 16240 जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, स्पाइक करने के बाद जब आप फिल्ट्रेशन करते हैं तो इसका लिमिट 0.01 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट, दैट इज द एक्सेप्टेबल लिमिट। 0.01 भी है तो वो भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन ये अगर आप LOQ देखें, इसका मतलब है लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन। लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन मींस कि इनके जो इक्विपमेंट्स हैं TUB के या कोई भी इक्विपमेंट जो अवेलेबल है, they can measure only up to 0.005 milligrams per liter. So उसकी लिमिट को कर सकते हैं। लेकिन हमारा रिजल्ट आया BLQ. So I was also not very clear कि BLQ क्या होता है। मैंने called up the lab manager और उनसे पूछा कि ये BLQ क्या है। He said it is below the limit of quantification, कि अब आप इसको क्वांटिफाई कर ही नहीं सकते हो, आपका इतना लो है 0.005 से भी नीचे है और हम इसको मेजर नहीं कर सकते। So that's the kind of purification our water purifier does.
सो इसी तरीके से अगर आप देखें तो बहुत जगह BNQ लिखा हुआ है which is below the limit of quantification. So this report will also be shared with all of you so that you can, while selling this product, you can use this. थैंक यू। हमारा जो मैं आपको जो प्रेजेंटेशन में दिखा रहा था क्लीनेस्ट वाटर प्रॉमिस, अब आप देखेंगे कि ऐसा एक भी पोल्यूटेंट नहीं है जो BNQ के ऊपर है या परमिसिबल लिमिट के ऊपर है। हमारा जो है वो मोरलेस वो कहना चाह रहे हैं कि मेजर ही नहीं कर पा रहे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये है पेस्टिसाइड्स के बारे में मैंने बात किया था, पानी के अंदर पेस्टिसाइड्स होते हैं। अब पेस्टिसाइड्स में लुक एट द लैंग्वेज दे आर मेंशनिंग all the pesticides। इसका मतलब क्या है? सिंपल। अब ये देखिए, all ऐसा एक भी नहीं है। We don't want to get into the detailed name of these pesticides, but मेरे कहने का मतलब ये है कि they are not even detected, none of the pesticides। सारे देख लीजिए। It is a total 7-page report। I think राजीव जी के पास ऑलरेडी आ चुका है ये, अगर नहीं आ चुका है तो मैं भेज दूंगा उनको so that he can share it with all of you। मुझे नहीं लगता कोई कैटलॉग की जरूरत है, this itself is sufficient। So अब जो है DDT is also a part of fertilizer and pesticide। So DDT के केस में भी आप देख सकते हैं कि it is not detected। अब आते हैं एंडोसल्फान, then the biological impurities जैसे E. coli है। So what does this report mean? मैं वापस आता हूँ प्रेजेंटेशन में। You will get this report, you can go through it thoroughly। This report primarily proves our promise of cleanest water। ठीक है? So this is the first benefit that we are giving vis-a-vis competition। Right? Does it excite you? Yes. Does it make sense? Yes. अब आपको पता लगा कि मार्केट में क्या है और हम क्या चीज आपको दे रहे हैं विथ प्रूफ। राइट? विथ प्रूफ। ठीक है ना? हो सकता है हमारी बात कोई ना माने, राइट? बट एटलीस्ट टेस्ट हुआ है। People can go to TUB website and verify the credentials of TUB। क्यों? ठीक है? Done? So this is the first benefit that we have। अब आते हैं, हाँ, any questions? हाँ? अब आता हूँ, disrupted technology बहुत ज़्यादा complicated नहीं है। disrupted technology क्या होता है कि, अच्छा मैं आपको एक बहुत important point बताता हूँ। आपने ये ब्लॉक डायग्राम देखा? ब्लॉक डायग्राम में टैंक में जाता है पानी, लेकिन टैप जब आप खोलते हैं तो डिसरप्टर के थ्रू आता है। अब इसमें बेनिफिट ये है कि सपोज सुबह के टाइम पे आपने डाल दिया, सुबह के पानी आता है, आपने टैंक को भर लिया और आपने प्योरीफायर को ऑफ कर दिया। जब आप प्योरीफायर को ऑफ कर देते हो, ऑफ कंडीशन में भी आप टैप खोलोगे तो डिसरप्टर के थ्रू पानी आपके टैप में आता है। मतलब पानी, हाँ हाँ मैं आता हूँ। आई एम ट्राइंग टू टेल यू द प्रोसेस। जो सबसे पहला बेनिफिट डिसरप्टर का ये है कि इट डजंट नीड एनी पावर। तो पावर ऑफ है, आपने नलके को खोला, द वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोज थ्रू द डिसरप्टर एंड इट इज डिलीवर्ड एट द टैंक। स्टोरेज है ना टैंक में, 3.5 लीटर का स्टोरेज है। ये जो टैंक, अरे गणेश आओ इधर, टैंक दिखाओ सब। आप भर सकते हैं, आप भर सकते। मटके की तो बेनिफिट आपने बताई है। This is the tank. This has a capacity of 3.5 liters of drinking water। मतलब इसमें पानी तो मतलब आप अगर देखेंगे वॉल्यूम वाइज इसके 12 लीटर है, बट चूंकि इसके अंदर क्या है गैस? हाइड्रोस्टैटिक टैंक। इसको हाइड्रोस्टैटिक टैंक बोलते हैं, जिसके अंदर प्रेशर रहता है। तो अगर आप इसको नीचे भी रखेंगे बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी, जब आप इसके फॉसेट को खोल रहे हैं तो पानी आता है, क्योंकि साइड से प्रेशर आता है और उससे वो पानी बाहर आता है। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत इसको भी नहीं है, डिसरप्टर को भी नहीं है। तो आपने सुबह एक बार इसमें पानी भर लिया, उसके बाद आप अपने वाटर प्यूरिफायर को स्विच ऑफ कर सकते हैं। पानी आपको जब भी चाहिए होगा टैंक के थ्रू, डिसरप्टर के थ्रू होता हुआ या फॉसेट में आएगा। सो देयर इज नो नीड फॉर इलेक्ट्रिसिटी फॉर व्हाइल यू आर टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम दिस। आप शायद क्वेश्चन पूछ रहे थे कि फिर एक दूसरा पार्ट क्या है उसका।
गैस का फील्ड गैस क्या होता है कि ये टैंक है। अब हमने जब आप प्रोडक्ट लेंगे आपको तीन पार्ट मिलेंगे, एक है मेन यूनिट, एक है आपका टैंक और तीसरा है वो टैप। वो टैप आपको मिलता है साथ में। दीज आर थ्री सेपरेट। मैं थोड़ी देर में आपको प्रोसेस बताऊंगा। बट सपोज ऐसी कोई जगह है जहाँ पे आपको टैंक लगाने की जगह ही नहीं है, हो सकता है इसके स्पेस नहीं है, स्पेस का प्रॉब्लम है, आप टैंक नहीं लगा रहे। सो इवन देन द वाटर थ्रू दी आरओ, जब आप अगर टैंक नहीं लगाएंगे तो टैंक को बाईपास करके, जब वो इंस्टॉलेशन करने जाएंगे हमारे इंजीनियर्स, टैंक को बाईपास करके वो आपका पाथ ये बना देंगे, तो ये वाला पाथ रहेगा ही नहीं। लेकिन इसका क्या होगा कि जो वाटर प्रेशर टैंक के थ्रू जब आता है तो वाटर प्रेशर ज्यादा रहेगा, लेकिन जब डिसरप्टर के थ्रू आएगा तो उसका वाटर प्रेशर कम रहेगा। कम रहेगा मतलब काफी कम रहेगा। 1 लीटर पॉटी भरने के लिए शायद आपको 2 मिनट इंतजार करना पड़े, वेरएज उस केस में आपको 1.5 लीटर मिलेगा 1 मिनट में। ठीक है, बट नेवर माइंड, वी हैव गिवन यू द फ्लेक्सिबिलिटी कि अगर चाहे तो आप टैंक को बाईपास करके आप डायरेक्ट उसको इंस्टॉलेशन, am I right Elias? ठीक है ना? सो दिस इज काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी दैट वी आर गिविंग। इसके प्रोडक्ट के बारे में और फ्लेक्सिबिलिटी है, वो मैं आपको डिटेल में बात करूंगा। बट डिसरप्टर टेक्नोलॉजी जैसे आप बता रहे थे कि इट क्रिएट्स अ 51 मिलीवोल्ट ऑफ चार्ज, तो इसमें जो प्लेट्स है उसमें चार्ज होते हैं, जो पोल्यूटेड्स है गेट एब्जॉर्ब्ड बाय द चार्ज। सो इसके जो पैसेज है हमेशा फ्री रहता है, कभी भी ब्लॉकेज नहीं होता। इट इज लाइक एडहेसिव फेविकॉल, एडहेसिव टेक्नोलॉजी, नॉट एन एब्जॉर्बिव टेक्नोलॉजी। मैं आपको समझाऊंगा। Yes. What is the source of that charge? It is. So इनका बहुत वैलिड क्वेश्चन था कि अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिया तो चार्ज कहाँ से आता है। सो देयर इज अ स्टेशनरी लेयर जो कि आपका प्रिंटर है, एंड देयर इज अ मूविंग लेयर जो आपका पानी है। So when these layers are coming in touch with each other, that 51 zeta volt is produced. This is a special technology that we have adopted, जिसमें पावर की जरूरत नहीं है और प्यूरिफिकेशन इज हाईएस्ट। आपका क्वेश्चन क्या था? Ganesh, whatever the questions are coming, please note down all the questions. उसको क्या करेंगे? We will try to create a FAQ और उसको वेबसाइट में डाल देंगे, है ना? नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन। ये जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो गणेश नोट कर लेना। पहले भी कुछ क्वेश्चंस आए थे मैडम आपके। I am trying to cover most of the topics. Yes ma'am. अगर हम टैंक यूज कर रहे हैं तो हमें कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देना नहीं पड़ेगा, राइट? अगर हम टैंक यूज नहीं कर रहे तो हमें कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा। लेकिन आरओ प्रोसेस होगा नहीं ना, फिर थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्वेश्चन। अगर आप टैंक नहीं यूज कर रहे हैं, आप सीधा डिसरप्टर के थ्रू ले रहे हैं तो वाटर फ्लो काफी कम होता है। उसमें 200 ml पानी भरने के लिए, छोटा सा बीकर भरने के लिए भी आपको तकरीबन 2 मिनट। तो आरओ से पानी आएगा ही। So it's better that you fill the tank first and then use water from the tank, which will come through the disruptor. Yes, that's the solution. हाँ, वो एक valve लगा हुआ है ना, उसमें it will not go into that. It will straight away go to the tank. So in any case, you have the option of closing the valve on the tank. उसको आप बंद कर दें तो directly water आ जाएगा। So कभी आपको फिल्टर की लाइफ भी अगर चेक करनी है। Yes. अभी we are talking about that only. First, let us cover the benefits. जो key benefits हैं जो Sharp Vestige दे रहा है, this is the first benefit. Are you convinced? Cleanest water promise is the first benefit. Convinced? Yes. And how it is better than competition? एकदम रामबाण हो गया, रामास्त्र। हमें बताइए टेंकर वाटर और इसमें दूसरा हाउ टू ये करेंगे जो वही है।
किंगर वाटर जो मार्केट में है आज के तारीख में, उसके साथ किस तरह से आप पुटअप करें? मैंने आपको बताया था ना, अल्कलाइन कैंगन क्या कर रहा है, कैंगन इज गिविंग यू 5, एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड। यस यस। कैंगन क्या करता है, कैंगन आपको 5 अलग अलग तरीके का पानी देता है। द टेक्नोलॉजी दैट दे आर यूजिंग, वो टेक्नोलॉजी से न्यूट्रल वाटर तो अपने आप आता है, लेकिन बाकी जो 2 पानी है वो एक साथ प्रोड्यूस करते हैं वो, राइट। वो देयर इज 2 टैंक होते हैं अलग अलग, 2 टैंक होते हैं अलग अलग। थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आयंस, हाइड्रोजन आयंस एक टैंक से दूसरी तरफ जाता है, जहां से जाता है वो एसिडिक होता है, जहां पे जाता है वो अल्कलाइन होता है। सो बोथ दिस वाटर्स आर प्रोड्यूस्ड at the same time. So this is the concept of Kangen water के 5 तरीके का पानी, अलग अलग बेनिफिट्स, हाई पीएच वाले का अलग बेनिफिट, हाई एसिडिक वाले का अलग बेनिफिट, लो पीएच का अलग बेनिफिट, न्यूट्रल का अलग बेनिफिट, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कैंगन के बारे में, अगर कैंगन को आपको कंपटीशन से हटाना है, ठीक है ना। अल्कलाइन का तो मैंने बता दिया शुरू में कि अल्कलाइन को किस तरीके से आप मतलब एडुकेट कर सकते हैं लोगों को। Then the choice is with the prospect और with your leader कि क्या डिसीजन लेंगे। लेकिन कैंगन के वेबसाइट में जब आप जाएंगे तो उन्होंने दिया हुआ है कि 5 तरीके के पानी के क्या क्या बेनिफिट है। देखा आपने 5 तरीके के पानी के अलग अलग बेनिफिट उन्होंने मेंशन किया हुआ है। आज आप जाइए वेबसाइट में, वहां पे देखिएगा कि जो न्यूट्रल वाटर है, जो न्यूट्रल वाटर के 2 क्लियर बेनिफिट उन्होंने लिखे हैं जो हमारे फेवर में, बोलते हैं ना कि ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अब उन्होंने 2 बेनिफिट जो लिखे, वो पहला बेनिफिट ये है कि बच्चों को जो खाना, अगर खाना बना रहे हो बच्चों के, मतलब इफ यू आर मिक्सिंग सीरियल्स, सेरिलैक और वो न्यूट्रल पानी से मिला के वो दो, बच्चों को अल्कलाइन मत दो, बच्चों को वो वाला पानी दो। फर्स्ट बेनिफिट दैट दे हैव मेंशन्ड इन देयर वेबसाइट, इन देयर वेबसाइट। सेकेंड बेनिफिट ऑफ न्यूट्रल वाटर विच दे हैव मेंशन्ड इज, आप अगर दवाई खा रहे हो, ठीक है, आप अगर दवाई खा रहे हो तो आप न्यूट्रल पानी के साथ दवाई पियो। We talked about bioavailability in the beginning of the presentation. Now you are able to connect it. हाँ, obviously purified water आपको उसमें देना पड़ेगा। The source has to be a purified water. उनको भी तो ये लगेगा ना, उसके बिना पानी कहाँ से आएगा, यानी प्योर तो यही करेगा अपना। यानी कैंगन के लिए आपको प्यूरिफायर तो चाहिए ही, वो वाटर को प्यूरिफाई नहीं करता है, वो सिर्फ अल्कलाइन करता है। सो उनको भी हम चाहिए। मतलब अगर वो अपने वेबसाइट में ये बता रहे हैं कि न्यूट्रल वाटर की ये बेनिफिट है, तो आई होप यू आर एबल टू जॉइन दिस डॉट्स, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? सो वील मूव टू द सेकंड बेनिफिट। ये बेनिफिट क्लियर है? दिस इज द मोस्ट की बेनिफिट vis-a-vis मोस्ट ऑफ द अदर कंपटीशन। अच्छा, ये पीएच वाला ये दिखाना जरूरी है अल्कलाइन और एसिडिक, ये जो है हम लोग बहुत डेमो करते हैं तो पीएच का ये पानी कितना लेवल है, ये डेमो ये जरूरी है। आई थिंक जो शुरू में मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए थे ना पीएच से लेके, वो 4 पॉइंट्स बता के आप लोगों को एडुकेट करिए, सचेतन करिए कि पीएच की ऐसी यूटिलिटी क्या होती है। यस, बॉडी में पीएच जरूरी है, लेकिन वो पीएच आप पानी के जरिए लेंगे या नेचुरल चीज जो आपके डाइट है उसके लेंगे, द चॉइस इज योर्स। अगर कोई एकदम ठान लिया कि नहीं मैं तो पानी से ही पीएच लूंगा, दैट इज हिज चॉइस, दैट इज हिज ओपिनियन। दैट इज हिज ओपिनियन, लेट हिम लिव विद हिज ओपिनियन। कांग्रेचुलेशंस बोल के बाहर आ जाइए। हाँ, हमारे भाषा समझा देंगे। हाँ जी। सर, आरओ टेक्नोलॉजी के अंदर एक बूस्टर पंप लगता है जो मेम्ब्रेन के अंदर पानी को प्रेशर से पास करता है, तो क्या हमारे इस मशीन में बूस्टर पंप अवेलेबल है? लेट मिस्टर एडी सिंह आंसर दिस। कोई भी आरओ मेम्ब्रेन बिना एक बूस्टर पंप के नहीं चल सकता है, सो इसमें भी एक बूस्टर पंप है। ओके, सेकेंडली हर आरओ मशीन के अंदर एक वेस्टेज वाटर निकलता है, तो कितना परसेंटेज अपने में निकलता है? 70% के करीब वेस्ट होता है, 30% प्योरीफाइड वाटर होता है।
तो वो पानी अपने टैंक में जाता है या नहीं, वो वेस्ट जाता है, ड्रेन में जाता है, तो उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड्स है कि आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर और सकते हो। क्लीनिंग में और इसमें यूज कर सकते हैं। आरओ में तो वेस्टेज होगा ही होगा, बट मैंने जो आपको पॉइंट बताया कि वी कुड हैव इजीली बाईपास द आरओ एंड यूज द डिसरप्टर टेक्नोलॉजी, लेकिन मार्केट में अगर विदाउट आरओ में कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं तो वो उसको बेचने में हमारे चप्पल घिस जाते हैं। सो लेट अस try and start with this. Let us see in future what kind of products we can offer. देखते हैं, बट आपको हमने प्रूफ दिखा दिया। आरओ इज नो डिफरेंट। आरओ के हमारे दो ही बेनिफिट्स है, एक है द क्वालिटी ऑफ द मेम्ब्रेन इज बेटर एंड बिकॉज द प्री फिल्टर्स इज बेटर इट इज गिविंग यू हायर लाइफ। मैं आपको समझा पाया? वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट, आपके घर पे प्यूरिफायर है, वाटर प्यूरिफायर है, फिल्टर कब बदलना है, कितने का बदलना है, ये कौन डिसाइड करते हैं? टेक्नीशियन। कंपनी जो सर्विस इंजीनियर आता है वो डिसाइड करता है, क्योंकि उसके मंथली टारगेट्स होते हैं, वो आके आपके पास आ जाते हैं, चलो यहाँ पे टारगेट पूरा कर दो, ठीक है ना? वेस्टीज इज गिविंग यू द ऑप्शन टू चूज कि आपको कब प्यूरिफायर बदलना है, कब फिल्टर बदलना है। उसके रीजन है, मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। क्या है कि द प्रोडक्ट हैज बीन डिजाइन्ड, आपने रिजल्ट्स देखे, आउटपुट के रिजल्ट्स देखे, द प्रोडक्ट हैज बीन डिजाइन्ड कंसीडरिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ इम्प्यूरिटी, ठीक है? और जो फिल्टर लाइफ मेंशन किए गए थे 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, दे आर बेस्ड ऑन द हाईएस्ट लेवल ऑफ इम्प्यूरिटीज, क्योंकि जापान ने उस तरीके से डिजाइन किया। अब क्या है कि हो सकता है आप कम इम्प्यूरिटी वाले एरिया में रह रहे हो और वहां पे आपने फिल्टर लगाया, तो ये जो बार है, ये जो बार्स है, ये घंटे के हिसाब से बार्स कम होते हैं, ठीक है? तो हो सकता है आपने 200 घंटे चला लिया तो बार 0 हो गई, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि पानी का जो टेस्ट है और पानी के जो प्रेशर है, मतलब विदाउट द टैंक जो पानी का प्रेशर है, नॉट विद द टैंक, विदाउट द टैंक जो पानी का प्रेशर है वो कंसिस्टेंट है, और फिल्टर की जो टेस्ट, पानी का जो टेस्ट है वो भी ठीक ठाक है। तो यू हैव द ऑप्शन टू चूज अ रीसेट फंक्शन, जिससे कि फिल्टर की रीसेट हो जाती है और दोबारा से आप उसको यूज करना शुरू कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग इट। मेक सेंस? दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप कहीं ऐसी जगह रह रहे हैं जहां पे पानी की इम्प्यूरिटीज बहुत ज्यादा है, हो सकता है बार 50% पे आया है लेकिन पानी का टेस्ट खराब हो गया और पानी का प्रेशर कम हो गया, तो उस केस में हो सकता है आपको बार कम होने से पहले ही बदलना पड़े। बट दैट सिचुएशन वी डोंट फील दैट इट विल हैव, बिकॉज वी हैव टेस्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो हमारे रिजल्ट्स है वो काफी एनकरेजिंग है। मुझे नहीं लगता आपको इतनी जल्दी फिल्टर बदलने पड़ेंगे। सो डज इट मेक सेंस? तो वेस्टीज इज गिविंग यू द ऑप्शन टू चूज कि आप फिल्टर कब बदलेंगे। यू विल डिसाइड द टाइम ऑन व्हिच यू विल रिप्लेस द फिल्टर। गुड? हाउ इज इट? राइट? बस ये जब इंस्टॉलेशन के लिए इंजीनियर आएगा, ये आपको बता देगा कि रीसेट कैसे करना है। आप डिसाइड करिए, इफ द टेस्ट इज गुड, इफ द प्रेशर इज गुड, रीसेट। बट अगर रीसेट करने के बाद, हाफ होने के बाद फिर टेस्ट खराब हो गया तो आप बदल दीजिए। So when our engineers will go for installation, they will check the TDS level in your home. So that TDS level of your home will be recorded in our system. So we will be able to monitor कि किस जगह में फिल्टर की लाइफ कितनी हो रही है, because हमारे लिए भी यह नया टॉपिक है। But we want to give this benefit to you because हमें पता है कि the product has been designed based on ultimate impurities. Because it can never happen कि आप कम में डिजाइन करके दो, हमें अल्टीमेट करके डिजाइन करके दिया है। So maybe the results are better. Good? Exciting? Right? Okay. एक पीपी फिल्टर के 6 महीने हैं, कार्बन के 8 महीने हैं, डिसरप्टर के 12 महीने हैं, आरओ के 2 साल। हाँ, लीटर्स में, हाँ हाँ, आवर नंबर ऑफ आवर्स में, एक्चुअली नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से फिल्टर की लाइफ सेट किया हुआ, राइट?
अगर हाँ? ये लाइफ फिल्टर की लाइफ, फिल्टर की रेटेड लाइफ जो जापान ने हमें बताया। अब क्या होता है कि आपने अगर कहीं लगाया ऐसी जहाँ पे TDS लेवल कम है, 600-700 है, हो सकता है फिल्टर की लाइफ 9 महीने हो जाए, हो सकता है 12 महीने हो जाए, बट आवर रिजल्ट्स दैट आर शोन आर वेरी पॉजिटिव। गणेश कहाँ लगा है यहाँ पे? आजम गणेश इज आवर ब्रांच सर्विस मैनेजर फॉर मुंबई रीजन। कहाँ लगाया, कितने TDS पे लगाया और कितने दिन चल रहा है बताओ। We have installed water purifier. My colleagues में बोलना मराठी आम्ही वॉटर प्युरिफायर माझ्या मित्राच्या घरीच लावलेलं आहे, मिस्टर रत्नाकर पुत्र. तर त्यांनी अच्छा, we have installed in Mirror. TDS was 65. Input was 200. Mumbai always actually, as you said, up to 100 kilometer TDS level is low. अच्छा, 1000 है तो कितना आएगा? हाँ? 1000 है तो हमारी तरफ 1000। अभी जैसे 1500 में 133 आ रहा था, तो उस हिसाब से आप रेशियो लगा सकते हो। 200 के ऊपर पैसा डाला है ना? हाँ? 200 के ऊपर पैसा डाला है ना अभी ऊपर? सॉरी, उड़का कितना आया था? मीरा रोड में देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था कि बॉम्बे रीजन में जो म्यूनिसिपल वाटर है उसकी TDS Below 100. हाँ, सोर्स ओनली 50 सर, हाँ, मुंबई में नलके से पानी आप पी सकते हैं। आरओ की जरूरत नहीं है। उसके लिए बॉम्बे के लिए दूसरा प्रोडक्ट है मैडम, बताओ। यूवी जो है खामा का 1 घंटे की ट्रेनिंग हो गई, आप सारी रामकथा सुना। राइट, वेरी गुड, ठीक है। सो वी मूव अहेड। तो हमने तीसरा बेनिफिट यह है कि वी आर गिविंग अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ फिल्टर्स जिसमें आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्यूरिफिकेशन मिल पा रहा है। एम आई राइट? हमें मल्टीपल फिल्टर्स लगाने की जरूरत नहीं है। 4 फिल्टर जो है वो सारे काम कर रहे हैं जो वो 8 फिल्टर नहीं कर पा रहे। पॉइंट इज दैट। जी जी जी, जैसे उन्होंने कहा कि हमें आरओ की जरूरत नहीं, पर वो जो बाद में जो नया हमने वो तो प्योरेस्ट वाटर वो ही देगा ना, बाकी सब वाटर प्यूरिफायर से। yes yes but we have a different product for Bombay। एकदम अगर बॉम्बे म्यूनिसिपल लिमिट्स की बात करेंगे, सो वी हैव अ डिफरेंट प्रोडक्ट। आई विल एक्सप्लेन दैट सेपरेटली। पहले इसको कंप्लीट कर लेते, हो गया, अनदर 2 मिनट्स विल फिनिश दिस, ठीक है। मैं आपको चीप प्रोडक्ट्स की बात कर रहा था। अब वाटर प्यूरिफायर में क्या होता है कि द वाटर फ्लोज थ्रू द प्यूरिफायर। When the water flows through the purifier, it makes contact with several plastic, metallic and different types of body. ठीक है ना? When the plastic quality is poor, it transfers the contaminant of the plastic into the water. ठीक है? But when you are buying a good quality product, branded product, तो वो environment friendly food grade material use करते हैं, ये जैसे। So these are the proofs that we have, who have certified कि हमारे जो मटेरियल यूज किया है, रॉ मटेरियल यूज किया है, प्लास्टिक की क्वालिटी, हर एक चीज की क्वालिटी जो है वो बहुत हाईएस्ट ग्रेड क्वालिटी के मटेरियल यूज किया गया है, जिसमें कांटेक्ट, वाटर कांटेक्ट से कोई कंटामिनेशन ट्रांसफर नहीं होता। सो दिस इज अ मेजर बेनिफिट व्हिच वी हैव vis-a-vis cheap products available in the market। बायोडिग्रेडेबल, यस। देन आरओ मेम्ब्रेन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, all the questions must be noted down, बाबा, ठीक है? नहीं, आपको बता देंगे। FAQ बनाएंगे ना, so that everybody can benefit। Reusing the drainage water, another 15 minutes will finish the presentation of both। वो उसमें 5 मिनट लगेगा, ठीक है? Reusing drainage water for gardening, छोटे पौधे को आरओ का वाटर मत दीजिए, जो बड़े पौधे हैं उनको आप दे सकते हैं। Mopping floors, flushing toilets and washing utensils. If you are very conscious about the water that is being wasted, you can store it in a drum and then you reuse it. There are certain requirements
कि इंस्टॉलेशन के लिए मैं ये इसलिए कवर कर रहा हूँ बिकॉज जैसे ही आप एक वाटर प्यूरिफायर खरीदेंगे वो डेटाबेस वेस्टीज की तरफ से हमारे पास आ जाएगा कि इनके घर में वाटर प्यूरिफायर पहुंच चुका है। जैसे ही वो डेटा हमारे पास आएगा, आवर कॉल सेंटर, आई वुड इनवाइट एडी सिंह आल्सो विद मी टू कंप्लीट दिस प्रेजेंटेशन, हमारे सर्विस सेंटर से, मतलब हमारे जो कॉल सेंटर है वहां से आपके पास कॉल आएगा, एंड व्हेन दे विल कॉल they will request for certain preparedness, मतलब आपकी साइट रेडीनेस के बारे में वो पूछेंगे। मैं आपको वो कुछ पॉइंट्स बताता हूँ so that you know कि इंस्टॉलेशन से पहले क्या क्या चीज की तैयारी जरूरी है, because this is not a कि आपने खरीद लिया और लगा दिया। मार्केट में जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं सीधे पाइप लगा दीजिए और काम चालू, ये this is not that kind of a product, this has got certain flexibility। सबसे पहली बात ये है कि आपको लोकेशन डिसाइड करना है कि आप इसको किचन में लगाएंगे या कहीं और लगाएंगे। यू कैन प्लेस इट एनीवेयर, मतलब बैल्कनी में भी लगा सकते हैं अगर वाटर सोर्स है। दिस हैज दैट काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। आप इसको वॉल माउंट कर सकते हैं, आप इसको अंडर द सिंक लगा सकते हैं, आप इसको टेबल टॉप भी लगा सकते हैं। दिखा दो एक बार, टेबल टॉप लगा के दिखा दो। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर वॉल में नहीं लगाना चाहे, टेबल पे लगाना चाहे, तो टेबल मतलब आपके किचन सिंक में लगाना चाहे वहां लगा सकते हैं। अंडर द सिंक, इफ यू डोंट वांट पीपल टू सी, सिर्फ टैप दिखाई देगा, टैंक और यूनिट सिंक के नीचे रहेगा, बाकी कुछ नहीं दिखाई देगा। वैसे भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। दूसरा ये है कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आपका मेन यूनिट, एक टैंक और एक टैप। ये जो तीनों चीजें हैं ये 2 मीटर रेडियस के, 2 मीटर डायमीटर के अंदर होना चाहिए। ये तीनों चीजें, पाइप दिया जाता है साथ में, तो तीनों चीजें 2 मीटर के अंदर होना चाहिए। जो भी आप जगह डिसाइड करेंगे, टैप, टैंक एंड मेन यूनिट, ये 2 मीटर डायमीटर के अंदर होना चाहिए। एक इलेक्ट्रिकल सॉकेट होना चाहिए जहां पे आप उसको लगाएंगे, मतलब कि जो सिंक है, अगर आप सिंक के आसपास लगा रहे हैं तो वहां पे एक इलेक्ट्रिकल सॉकेट होना चाहिए। चौथा है बहुत इंपॉर्टेंट, वाटर प्रेशर। वैसे तो बॉम्बे में वाटर प्रेशर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फॉर योर डाउन लाइन्स वाटर प्रेशर जरूरी है। somebody was asking कि वाटर मोटर लगा हुआ है कि नहीं। सो वाटर प्रेशर में कैसे मेजर करेंगे कि आपने अगर 1 लीटर का बॉटल 2 मिनट में, 2 मिनट, एक मिनट के अंदर अगर 2 लीटर से 4 लीटर भर जाता है तो इसका मतलब वाटर प्रेशर सफिशिएंट है। अगर नहीं भरता है, 1 मिनट से कम लगता है, तो आपको बूस्टर पंप लगाना पड़ेगा। अगर आपके ज्यादा जल्दी भर रहे हैं तो आपको एक फ्लो रेस्ट्रिक्टर लगाना पड़ेगा। सो दैट विल डिपेंड ऑन द इंस्टॉलेशन टाइप। मतलब ये सब चीजें आपसे पूछेंगे। व्हाई वी हैव लिस्टेड इट डाउन हियर इज ताकि इंजीनियर के विजिट्स, हम मल्टीपल विजिट्स रिड्यूस कर सकें, ठीक है ना। सो प्लीज कोऑपरेट विद द कस्टमर सपोर्ट टीम। जब आपको पूछेंगे, अगर आपके पास उस वक्त टाइम नहीं है तो आप उनसे बोल सकते हैं कि इस टाइम पे कॉल करो, या तो किसी और से बात करवा सकते हैं। देन अब ये जो टैप है, टैप आप बेसिन में भी लगा सकते हैं, वॉल पे भी लगा सकते हैं, या तो ग्रेनाइट पे लगा सकते हैं। मतलब अगर आपकी किचन जो है मार्बल ग्रेनाइट है तो ग्रेनाइट पे भी लगा सकते हैं, बेसिन में लगा सकते हैं, या वॉल पे लगा सकते हैं। अगर आपको वॉल पे लगाना है और बेसिन में लगाना है तो हमारे पास जो इंजीनियर आएंगे वो ड्रिल मशीन से आपको वो करके देंगे। लेकिन आपको अगर ग्रेनाइट में लगाना है तो वो ड्रिल आपको किसी बाहर के किसी आदमी से ड्रिल करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा आदमी वो हेवी मशीन लेके नहीं आ पाएगा। दैट कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड। वाटर ड्रेनेज को आप, जैसे मैंने आपको बोला, आप गमले में रखना चाहते हैं या उसको वेस्ट में देना चाहते हैं, दैट इज योर डिसीजन। जो मैंने आपको फिल्टर के लाइफ के बारे में बताया, एक बार मशीन को ऑन कर सकते हो गणेश? अच्छा, सो ये जो है मशीन के जो डिस्प्ले है, मशीन के अंदर जो डिस्प्ले है, ये जो डिस्प्ले पॉइंट आपको, ये जो डिस्प्ले है ना, यहाँ पे फिल्टर, 4 फिल्टर के लेवल दिखाई देंगे आपको। सो प्लीज कीप चेकिंग द लेवल्स कि कितना कम हो रहा है, ताकि आप उस तरीके से डिसाइड कर सके कि फिल्टर बदलना है या फिल्टर को रिसेट करना है, ठीक है। सो दीज आर द इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट्स। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के आफ्टर सेल सर्विस। प्यूरिफायर में क्या था, इतनी फेलियर रेट नहीं है, आप खुद लगा देते थे, वीडियो हमने डाल दिया था, सो उसको गाइडेंस करके आप लगा देते थे। बट वाटर प्यूरिफायर के लिए इंस्टॉलेशन आफ्टर सेल सर्विस विल बी डन डायरेक्टली बाय शार्प। सो शार्प के इंजीनियर्स आएंगे आपके वाटर प्यूरिफायर रिपेयर करके। हमारा जो
सर्विस प्रिपेयर्डनेस है उसके बारे में मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर एडी सिंह विल टेल अबाउट दिस सर्विस प्रिपेयर्डनेस। सर्विस कितनी देर में मिलेगा, कहां पे कितना समय लगेगा। आई वुड रिक्वेस्ट हिम टू टॉक अबाउट द सर्विस प्रिपेयर्डनेस। थैंक यू। सर्विस में ऐसा है कि ऑल इंडिया में इस वक्त तकरीबन 19,000 पिन कोड्स हैं पूरी सिटीज को अगर आप कवर करते हैं, जिसमें से 13,500 और 13,500 पिन कोड्स आर कवर्ड बाय शार्प सर्विस। So 13,500 पिन कोड्स कैन बी कवर्ड बाय अस। मुंबई तो डेफिनेटली द एंटायर मुंबई इज कवर्ड, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन कुछ सब कंट्रीज के लोकेशंस हैं जहाँ पे अभी हम अपना नेटवर्क एस्टेब्लिश कर रहे हैं, सो नो टाइम दैट विल आल्सो बी एस्टेब्लिश्ड। सो जब भी आपको शार्प का प्यूरीफायर इंस्टॉल करना है, वी हैव अ टोल फ्री नंबर विच इज गिवन ओवर हियर एंड वी विल आल्सो सर्कुलेट इट। तो उस नंबर पर आप एक कॉल मार दीजिए फॉर इंस्टॉलेशन। So then, as Majumdar said, somebody will call you and take down all the details. वो आपसे पूछेंगे कि आपको कहाँ पर इंस्टॉल करना है, आपको वॉल माउंट कराना है या अंडर द सिंक लगाना है या आप कहाँ लगाना चाहते हैं। So they'll ask you some questions. आपको अगर फॉसेट जो है, जो टैप है, वो आपको ग्रेनाइट में अगर लगवाना है तो रिक्वेस्ट यू टू गेट दी होल ड्रिल्ड बाय योरसेल्फ। किसी और को बुला के आप उसमें होल ड्रिल करवा लीजिए। आपसे पूछेंगे कि पावर पॉइंट है उसके आसपास जहाँ पर इंस्टॉलेशन होनी है। दिस इज टू अवॉइड रिपीट विजिट्स ऑफ द इंजीनियर्स। इसके अलावा कई बार होता है कि टोल फ्री नंबर मिलता नहीं है या बहुत बिजी है, आप क्यू में हैं तो काफी देर वेट करना पड़ता है। जस्ट टू टेक केयर ऑफ दैट हमने मिस्ड कॉल नंबर दे दिया है। सो उस नंबर पर अगर आप कॉल करेंगे, सो विद इन एन आवर समबडी विल कॉल यू बैक एंड ही विल टेक डाउन ऑल द डिटेल्स। सो यू नीड नॉट वेट। आप क्यू में नहीं रहेंगे कभी भी, या तो आपको इमीडिएटली कॉल मिल जाएगी कॉल सेंटर की। अगर वो नहीं मिल रही है तो आप मिस्ड कॉल पे एक नंबर दे सकते हैं। एक दो रिंग जाने के बाद वो फोन अपने आप कट जाएगा एंड देन समबडी विल कॉल यू बैक। सो दैट्स अनदर वे ऑफ गेटिंग योर कंप्लेंट रजिस्टर्ड। वारंटी ऑफ द प्रोडक्ट इज 1 ईयर, राइट। फिल्टर्स का आपको लाइफ बता देते हैं। वारंटी ऑफ द प्रोडक्ट इज 1 ईयर। और then my name and my email ID is given. In case you have any escalation, in case you are not getting satisfactory service, my direct email ID and my number is given over there, so you can contact me anytime. Right? कितने घंटे में सर्विस हो पाएगा? अगर आप let's say 12 बजे तक आप कंप्लेंट करते हैं या इंस्टॉलेशन की रिक्वेस्ट देते हैं, then 80% of the cases हम ये कोशिश करते हैं कि उसी दिन शाम तक आपका इंस्टॉलेशन हो जाए। Otherwise within 24 hours, definitely within the city limits. Within city limits 24 hours में आपका इंस्टॉलेशन या कंप्लेंट अटेंड हो जाएगी। और अगर आपका अप कंट्री में है then we are saying 48 hours. Yeah. AMC अभी नहीं मैडम, because अभी प्रोडक्ट वारंटी में है तो उसके बाद we offer those. Sorry, pricing will be shared. एक्चुअली क्या है कि फिल्टर्स के प्राइस तो हम दे चुके हैं, बट उसमें BV and PV is being calculated. So in the next 10-15 days you will get the price of the filters, but it will be very competitive compared to the market that, और उसमें BV PV भी आपको मिलेगा। और हाँ, किसका बुकिंग वो राजीव जी आपको बता पाएंगे। डिलीवरी, इंस्टॉलेशन, स्पेयर पार्ट्स। हाँ, देखिए जो आपके पास अगर प्रोडक्ट पहुंच गया, उसकी पूरी सर्विस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। आपके पास प्रोडक्ट पहुंचाने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी राजीव जी की। एक एक करके क्वेश्चन पूछिए। हाँ, जैसे ही एयर प्यूरिफायर हो रहा है वैसे ही होगा। But अभी I think there is a scheme wherein if you are doing a pre-booking, then the product will be delivered to your home. अभी एक scheme चल रहा है। That Rajiv ji will explain about this. Yes. Sir, filters वो चारों अलग है या फिर हमें 1 by 1 चेंज करना पड़ेगा? नहीं, चारों फिल्टर अलग है, अलग से रिप्लेस कर सकते हैं और अलग-अलग इंडिकेशन है। अभी आपने बताया कि उसमें इंडिकेशन साइन के 4 अलग-अलग। तो उसमें जो फिल्टर को चेंज करना है वो मैं आपको बुला गया सर्विस में। हाँ, चेंज करना है 1 by 1। जिसके कम हो गए लेवल वो आप बता के उसकी रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं। फ्री सर्विस 1 ईयर है। हाँ, फ्री सर्विस 1 ईयर। सॉरी सर, हाँ, मतलब हम लोग उसको देखेंगे कि सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स उसको किस तरीके से कर सकते हैं। वी आर वर्किंग ऑन इट। थोड़ा सा टाइम दीजिए। इन द नेक्स्ट 15-20 days we will be ready with the service part.
टोटल वेट ऑफ द किट इज अबाउट 13 kgs, राइट? बॉक्स का वेट जो है, बॉक्स का वेट 13 to 14 kgs, 14 kgs। सर जो 6 month में फिल्टर चेंज करने जाएगा वो चेंज हो जाएगा, तो फिल्टर प्राइस चार्ज। हाँ, बिल्कुल फिल्टर की प्राइस ही चार्ज की जाएगी, सर्विस चार्ज नहीं चार्ज किया जाएगा, ठीक है? टैंक का पर्पस ये नहीं है कि स्टोरेज का, टैंक का पर्पस ये है कि वो प्रेशर, जब आप पानी आउटपुट वाटर का प्रेशर बढ़ाने के लिए। So let us summarize the key benefits of the water purifier. First and foremost is इसकी इंस्टॉलेशन की फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें टेबल में भी लग सकता है, दीवार पे भी लग सकता है, या तो अंडर द सिंक लग सकता है। कई तरीके की पानी को आप इनपुट डाल सकते हैं, ग्राउंड वाटर, ट्यूबवेल वाटर, फिर आपका म्यूनिसिपल वाटर, एनी काइंड ऑफ वाटर कैन गो इनटू इट, ठीक है? हाँ, टैंक को आपको टैंक और ये जो टैप है या तो सेम लेवल पे रखना पड़ेगा या तो उसके नीचे रखना पड़ेगा। पहला। दूसरा पॉइंट, क्लीनेस्ट वाटर प्रॉमिस, आई थिंक वी हैव प्रूव्ड दैट। थर्ड पॉइंट इज जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो हाईएस्ट ग्रेड मटेरियल यूज कर रहे हैं। चौथा पॉइंट, आरओ मेम्ब्रेन जो है वो प्रीमियम आरओ मेम्ब्रेन है विच इज बीन इंपोर्टेड फ्रॉम यूएसए। फिल्टर लाइफ डिस्प्ले और फिल्टर लाइफ के परचेज आपके हाथ में है, सो दैट यू आर एबल टू रिड्यूस द आरओआई, मतलब आपके जो पानी का खर्चा है वो कम कर सकते हैं। सो आई हैव कम टू द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। दूसरे प्रोडक्ट के लिए मेरे को 5 मिनट चाहिए, 5 मिनट में अभी वी विल फिनिश दैट अदर प्रोडक्ट आल्सो। वेस्टेज का नाम किसमें? वेस्टेज का नाम देखना पड़ेगा एक बार। ये दीज आर ऑल प्री प्रोडक्शन सर्विस। एयर प्यूरिफायर में आता है, अभी मैं बता नहीं सकता, बट वारंटी कार्ड में लिखा हुआ आएगा, डब्बे पे लिखा हुआ आएगा। प्रोडक्ट के बारे में अभी मैं बता नहीं सकता, बता नहीं पाऊंगा, देखना पड़ेगा। सो लेट अस हाँ, उसको ब्लॉक हो जाएगा रे बाबा, साइड में कर, साइड में चार, उनको भी बुलाता हूँ, उत्तरंग साहब। अच्छा, ये जो है आपको मैंने बोला था कि 2 अलग अलग प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। एक प्रोडक्ट है TDS अगर 300 के नीचे है, जैसे बॉम्बे एनवायरनमेंट है, वहां के लिए यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट। बॉम्बे के जो पाइप के जरिए जो इम्प्यूरिटीज आते हैं उसको सीधे आप इसको यूज करके आप प्यूरिफाई कर सकते हो। दिस इज वन बेनिफिट ऑफ इट। अगर TDS 300 के नीचे है तो इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना, अगर TDS 300 के ऊपर है तो वी वुड रेकमेंड दी वाटर प्यूरिफायर, ठीक है? दिस इज फर्स्ट चेक। दूसरा ये है कि अगर किसके पास ऑलरेडी वाटर प्यूरिफायर है और रिसेंटली परचेज किया है और इमीडिएटली वो चेंज नहीं करना चाहते हैं, नाउ यू नो दैट द वाटर प्यूरिफायर इज नॉट गिविंग 100% प्योर वाटर, तो इसको लगा के आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। सो दिस इज द सेकंड बेनिफिट दैट वी हैव। तीसरा बेनिफिट ये है कि ऑन दी गो, कहीं आप टूर पे जा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं गाड़ी में, इसको लेके चलिए, आपको कहीं पानी मिलता है, इसको डाल के आप पी सकते हैं। चौथा बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है चौथा बेनिफिट। चौथा बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए, आज ये मीटिंग हो रही है, हर एक टेबल पे बॉटल रखा गया है बिजली। इस होटल में आरओ तो होगा ही होगा। अब वो ऐसा नहीं कर सकते कि ये वाला जग जो है एक डाल के रख दे टेबल में, प्लास्टिक भी बच जाएगी, इको फ्रेंडली भी, they can declare themselves as eco friendly, less use of plastics. So this is who will meet Novotel manager first. So this is one more application. जैसे similarly hospitals है, hotels है,
होटल्स में भी आप जब होटल में जाते हो तो वो एक जग देता है, तो उसमें दे कैन गिव यू दिस प्यूरिफाइंग जग, सो इट इंप्रूव्स द कस्टमर सर्विस ऑफ द हॉस्पिटल, स्पेशली हॉस्पिटल्स। जो पेशेंट्स को वहां भी आरओ होते हैं, वो आरओ से पानी निकाल के जग में भर के देते हैं। इंस्टेड दे कैन यूज दिस फिल्ट्रेशन सिस्टम, सो इट हैज अ वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस, ठीक है ना। तो इसका इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है। इसके इंस्टॉलेशन के लिए आपको इंजीनियर को बुलाने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है गणेश, ये इसके 4 कंपोनेंट है, पकड़ लो यार पुत्रन, पकड़ लो, 4 कंपोनेंट है, ठीक है। जब पहली बार आप इसको खरीदेंगे तो वेस्टिज डिश वॉशर के साथ इसको साफ कर लीजिए, ठीक है। और पूरे चारों कंपोनेंट को साफ कर, 3 कंपोनेंट को, और इसको 20 मिनट के लिए पानी में सोक करिए बिफोर यूजिंग इट। और जब इसको इंसर्ट करेंगे इस सॉकेट के अंदर, ये देखिए ये इनलेट वाटर सॉकेट है, इसके अंदर आपको इंसर्ट करना है। ये इंसर्ट जब करना है, इसमें कैविटी दिया हुआ है, जब इंसर्ट करेंगे थोड़ा प्रेस करना है आपको, लूज नहीं छोड़ना है, आपको प्रेस करके एकदम अंदर तक लेके जाना है। सो इट विल गो कंप्लीटली इनसाइड, थोड़ा एकदम जोर से। निकालते वक्त अगर निकालेंगे उसको तो यहाँ से दबा के फिर आपको निकाल सकते हैं, ठीक है। सो दिस हैज गॉन इनसाइड, तो इसको ऐसे प्लेस कर देना है, ऐसे प्लेस कर दिया आपने। सो देन यू पुट द कैप, ठीक है। ये कैप इसमें जिस तरीके से बैठ जाता है, ये फिट हो गया आपका, राइट, वेरी सिंपल। तो ये जो है आप देखिए यहाँ पे खुला, दिस इज इनलेट वाटर, मतलब आपके एग्जिस्टिंग फिल्टर या टैप कहीं से भी पानी भर लीजिए इसमें। पानी भरने के बाद ये फिल्ट्रेशन होके नीचे आएगा। जब तक फिल्ट्रेशन होके नीचे आता है तब तक आप इसका आउटलेट वाटर टैप वो मत यूज करें। एक बार पानी पूरा अंदर आ जाता है तो फिर इसका आउटलेट से पानी आप ग्लास में निकाल के या बॉटल में डाल के पी सकते हैं, मतलब ग्लास में निकाल के डायरेक्टली पी सकते हैं। सो दिस इज वेरी सिंपल इंस्टॉलेशन, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, इसमें एक और पॉइंट है, इसके ऊपर एक मैकेनिकल रोटेटर दिया हुआ है। सपोज यू स्टार्ट यूजिंग इट फ्रॉम द मंथ ऑफ मे, तो इसको आप 5 के लेवल पे रख दीजिए। इसकी फिल्टर लाइफ है 6 महीने। इसमें 6 महीने के बाद आपको इसको फेंक देना और दूसरा बदलना। तो जब आपको 5वें महीने से शुरू कर रहे हैं तो 11वें महीने में आपको इसका बदलना, 6 महीने की फिल्टर लाइफ। ये हाँ अंदर वाला जो व्हाइट कलर का ये जो है, ये बीच बीच में आप हफ्ते में एक बार इसको वेस्टेज डिश वॉशर से वॉश करते रहिएगा। ये वाला बदलना है आपको 6 महीने। इसका भी प्राइस आपको हम बता देंगे। और I'm coming to it, एक मिनट बोलिए। पहली बार जब आप यूज कर रहे हैं तो 3 बार इसका ड्रेन कर लीजिए, फिल्टर करके 3 बार ड्रेन करने के बाद, सो 20 मिनट का सोकिंग, 3 बार ड्रेन करने के बाद देन यू स्टार्ट फ्रॉम 4th टाइम यू कैन स्टार्ट यूजिंग। बॉम्बे के लिए आइडियल है, जहां पे ये उन जगहों के लिए आइडियल है जहां पे आप डायरेक्टली नलके से पानी पी सकते हैं, बट कुछ समय कभी बरसात में पानी में स्मेल आता है, सो इट विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ दैट प्रॉब्लम। इसमें जो 1.5 लीटर की पानी स्टोर कर सकते हैं, इंस्टेंटली फिल्टर होता है, इंस्टेंट फिल्ट्रेशन। सर हाँ? फिर आगे देखते हैं, देखिए एबीएस फिर आगे देख लेते हैं। बाय द वे राजीव जी, ये सैंपल आप कहाँ रखेंगे, बोरीवली में कि घाटकोपर में? बोरीवली में ये सैंपल रहेगा और जग जो है राजीव जी के डेस्क में रहेगा। So whenever you want you can taste that water, but he will not be